Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with IGCSE Physics, October-November 2024, paper 6, variant 2. Let's get started with it. So let's zoom in a bit and start with this question. Figure 1.1 represents a stack of glass of microscopic slides. अच्छा जी ये stack of glass है of microscopic slides, okay. A student takes measurements from a stack of glass of microscopic slides in order to estimate the number of slides in the pack. अच्छा जी हमने number of slides in the pack estimate करनी है, ठीक है. The sides of the stack have been covered with tape so that the students cannot count the number of the slides in the stack. अच्छा जी आप directly number count नहीं कर सकते, okay. Figure 1.2 shows the side view of the taped stack of slides given to the student. This figure has been drawn at full scale. अच्छा जी फिगर को आपने full scale पे draw किया हुआ है. Use figure 1.2. अच्छा जी we have to use figure 1.2 to measure length L, width W, height H of the covered stack of slides in centimeters to the nearest millimeter. हमने एल एच और डब्ल्यू मेजर करना है करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर. तो बेटा हमने क्या करना है स्केल लेके ये रूलर से सारी चीज़ें मेजर कर लेनी है. आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड दैट फॉर यू. ये लेंथ आ रही थी 7.5 सेंटीमीटर. विथ वॉज कमिंग आउट टू बी 2.5 सेंटीमीटर. और आपकी जो हाइट है दैट वॉज कमिंग आउट टू बी 1.3 सेंटीमीटर. तो सबको यहाँ पे लिख देते हैं. Length is 7.5, width is 2.5, height is 1.3 centimeter. अब आगे बढ़ते हैं. The student uses a balance to measure the mass m of the covered stack of slides. अच्छा जी आपने mass m measure कर लिया of the covered stack of slides. Write down the mass of the covered slides to the nearest 0.1 grams. बेटा आपने मास लिखना है टू द नियरेस्ट 0.1 ग्राम से 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है. इफ यू रियलाइज द सेकेंड डेसिमल प्लेस इज ग्रेटर देन 5. ये 7 है ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे +1 कर दोगे. योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस कम्स आउट टू बी 57.9 ग्राम्स. सिंपल एज दैट. आगे पढ़ते हैं बेटा. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ग्लास. अब आपने डेंसिटी ऑफ द ग्लास निकालना है. हाउ विल यू डू दैट. मास क्या है 57.9. व्हाट वाज योर लेंथ. 7.5, width was 2.5, height was 1.3. 7.5, 2.5 into 1.3. Can you calculate the density बेटा. डेंसिटी निकाल सकते हो जी सर बिल्कुल. 57.9 divided by 7.5, 2.5 into 1.3. डेंसिटी का आंसर comes out to be what. 2.38 grams per centimeter cube. Now sir, why have you chosen grams per centimeter cube as your unit? क्योंकि आपका mass grams में है and length, width and height all of them are in centimeter. Answer is 2.38. Unit is gram per centimeter cube. ठीक है, let's further move ahead. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं. हाँ, there is nothing else. Okay, perfect. The teacher writes down the mass and thickness of a single microscopic slide on a piece of card. ठीक है भाई. टीचर क्या कर रही है. thickness of one slide and the mass of one slide उसने यहाँ पे लिख दिया टीचर ने. ओके. use your answer to B part 1 and information from the card in figure 1.4 to estimate the number of microscopic slides in the covered stack. अच्छा B part 1 में हमें क्या given था. In B part 1 if you realize you were given the total mass of the slides. बेटा बी पार्ट 1 में आपको क्या गिवन था. टोटल मास ऑफ द स्लाइड्स दैट वाज 57.9. ओके. व्हाट इज द मास ऑफ वन स्लाइड 4.2. 57.9 डिवाइडेड बाय 4.2. बताओ टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स क्या आ गई बेटा. व्हाट डज योर टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कम आउट टू बी. टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स कम्स आउट टू बी 13.8. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स बेटा क्या आ गई 13.8 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ऑब्वियसली आपकी स्लाइड्स होल नंबर्स में होंगी डेसिमल में तो नहीं हो सकती. सो लेट्स राउंड इट अप.
बेटा आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स तो ऑब्वियसली होल नंबर में होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 13 स्लाइड्स हो और फिर 0.8 स्लाइड हो, नो। इट कैन बी आइदर 14 और 13, आई हैव राउंडेड दिस अप। ओके, 14 इज योर आंसर। Use your answer to part A and the information from the card in figure 1.4 to obtain another estimate of the microscopic slides. बेटा पार्ट ए में क्या आप रियलाइज कर सकते हो यू वर गिवन द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लाइड्स? अगर आप रियलाइज करो तो पार्ट ए में यू वर गिवन द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लाइड दैट इज 1.3 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वन स्लाइड क्या है? 0.11। तो 1.3 डिवाइडेड बाय 0.11, व्हाट इज योर नंबर ऑफ स्लाइड्स? दिस कम्स आउट टू बी 11.8। अब 11.8 तो कोई स्लाइड्स नहीं हो सकती, राउंड इट अप, 12 आपका आंसर आ गया, सिंपल। Two quantities are considered to be equal if they are within the limits of experimental accuracy if their values are within 10% of each other. State whether your values n1 and n2 from c1 and c2 can be considered equal. क्या करेंगे? Percentage difference. What is the larger value? 14. Smaller value क्या है? 12. एवरेज वैल्यू से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू? 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 12 दैट इज 2 ओवर 13 इंटू 100। व्हाट डज योर परसेंटेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी? Percentage difference comes out to be 15.4% according to three significant figures, which is greater than what? बेटा ये परसेंटेज डिफरेंस ग्रेटर है 10% से, दैट्स वाई बोथ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इसको हम छोटा सा कर देते हैं। यू कैन राइट हेयर। अच्छा, इसको भी हम छोटा सा मुन्ना सा करके यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। यू कैन से कैलकुलेशन, अच्छा जी कैलकुलेशन तो चलो यहाँ पे हम रख सकते हैं ना। अच्छा जी, लेट्स कीप द कैलकुलेशन हेयर। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट? नो, both the values are not equal. No, both the values are not equal. Why? Because the percentage difference is greater than 10%. Simple. Suggest one reason why the estimated value of n are different. अच्छा जी, ये estimated value of n क्यों different है? एक 14 है, एक 12 है। Why is that the case? Because not all slides have the same mass or the same thickness. बेटा हर स्लाइड का मास या थिकनेस सेम नहीं होती। थिकनेस एंड मास कैन वेरी, दैट्स व्हाई these estimations are different. Not all slides have the same mass and thickness. This color is actually good. It's quite visible. Let's use this for the entire paper. A student measures the resistance of a light emitting diode. This is LED, ठीक है? When the current in it changes, ठीक है? जब current change हो रहा है तो आप resistance measure कर रहे हो। The student sets up the circuit shown in figure 2.1. अच्छा जी, ये circuit है। The student connects a voltmeter to measure the potential difference across the 220 ohm resistor. अच्छा जी, voltmeter लगा रहे हो to measure the voltage across the 220 ohm resistor. Closes the switch. Records the voltmeter reading VPQ in the top row of table 2.1. Then he opens the switch. On figure 2.1, draw the symbol for a voltmeter connected to measure the potential difference across the 220 ohm resistor. बेटा 220 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस किस तरह वोल्ट मीटर लगाओगे टू मेजर द वोल्ट? अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल लाइक दिस, सिंपल। द वोल्ट मीटर रीडिंग इज शोन इन फिगर 2.2। अच्छा जी, वोल्ट मीटर रीडिंग यहाँ पे शोन है। राइट डाउन दिस रीडिंग इन द टॉप रो ऑफ टेबल 2.1 अंडर द हेडिंग VPQ। बेटा ये रीडिंग क्या होगी? दिस इज 2.1, 2.2, 2.3, दिस विल बी 2.4।
volts. Voltage VPQ is 2.4 volts. Okay. The student disconnects the voltmeter from point PQ, reconnects the voltmeter across the LED between points Q and R. अच्छा जी, स्टूडेंट ये कर रहा है कि वोल्टमीटर को अब डिस्कनेक्ट कर रहा है एंड कनेक्टिंग इट अक्रॉस Q एंड R. यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है वोल्टमीटर को. ओके, वी डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, जस्ट लेटिंग यू नो टू बेटर विजुअलाइज इट. He closes the switch, records the voltmeter reading VQR in the top row of table 2.1, opens the switch. Okay. Calculate the current I in the circuit in part A using this equation where R is equals to 220 ohm. ठीक हो गया. Record your answer in the top row of table 2.1. अच्छा जी, करंट निकालने कैसे निकालें. वोल्टेज पी क्यू 2.4, रेजिस्टेंस 220 ohm, करंट क्या आ जाएगा. नाउ इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, यू विल बी सरप्राइज कि करंट आ रहा है 0.0109090909. विल यू राइट ऑल दीज वैल्यूज? नो. बेटा रियलाइज करो कि दिस वोल्टेज की वैल्यू was still two significant figures, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. तो आपने करंट को भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिमिट कर देना है 0.011. दैट्स इट. आपने यहाँ तक करंट की वैल्यू को लिमिट कर देना है. ठीक है. एंड ये वन कैसे हुआ? बिकॉज कैन यू रियलाइज द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे +1 हो गया. 0.01 is your answer. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ. सिंपल सी बात है, जितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इन द मेजर्ड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यूज में भी आपने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने या उससे एक ज़्यादा. अच्छा, यहाँ पे आप आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी लिख सकते थे. ये तो मैंने टू पे लिखा है ना. हेयर आई हैव रिटन द आंसर टिल टू. आप थ्री पे भी लिख सकते थे 0.0109. ये भी करेक्ट मार्क किया जाता. आइदर यू कैन कीप योर आंसर टिल 2SF और 3SF. एंड वाई इज दैट द केस? सर आपने ऐसा क्यों किया, 2SF या 3SF क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो, आपका वोल्टेज भी 2SF पे था, रेजिस्टेंस भी 2SF पे, तो जो आप इनसे वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आपने आइदर 2SF पे या 3SF पे दी. तो यू कैन, आई विल कीप इट टिल 2SF. आई वांट टू कीप माय वैल्यूज एज क्लीन एज पॉसिबल. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी यूजिंग दिस इक्वेशन. अच्छा जी, आपने रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी निकालनी है. हाउ विल यू डू दैट? वोल्टेज वी क्यू है 2.1 डिवाइडेड बाय करंट क्या है 0.0011. निकालो जरा आंसर. द आंसर कम्स आउट टू बी 190.909090. Obviously you will only keep the first two significant figures क्योंकि ये भी 2SF पे, ये भी 2SF पे. तो आपने अपना आंसर भी 2SF पे दे देना है. 190 ओम्स. सिंपल. आप टू एस एफ पे भी आंसर दे सकते हो, 1SF पे भी आंसर दे सकते हो, बट मैंने आपको बताया है कि मैं अपने आंसर्स 2SF पे रखता हूँ ताकि मेरे आंसर्स नीट एंड क्लीन दिखें. आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मेस इन दिस टेबल. ओके. The student removes the 220 ohm resistor, okay, from the circuit and replaces it with a 330 ohm resistor. अच्छा जी, अब आप ये कर रहे हो कि you are removing this 220 ohm resistor, you are placing a 330 ohm का resistor. अब ओके. अब क्या हो रहा है? Reconnects the voltmeter across the resistors between point P and Q. ठीक है. Repeats parts from A to C for the 330 ohm resistor. Okay. Use the information in table 2.1 to calculate the value of potential difference VPQ across the 330 ohm resistor. Show your working and record your answer in table 2.1. अच्छा जी, हमने ये वाली रीडिंग निकालनी. फॉर दिस यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग. द टोटल ईएमएफ, टोटल वोल्टेज कह लो, टोटल ईएमएफ कह लो,
of a circuit remains constant. The total EMF of a circuit remains constant. बेटा यहाँ पे आपका EMF क्या आ रहा है? What is the EMF total in the first row? 2.4 प्लस 2.1, ये क्या हो जाएगा? 4.5 वोल्ट्स। आपका टोटल ईएमएफ इज 4.5 वोल्ट्स, तो सेकंड रो में भी आपका टोटल ईएमएफ 4.5 रहेगा। कैन यू कैलकुलेट दिस एक्स? यस, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4.5। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2.5। सिंपल। द ईएमएफ अक्रॉस अ सर्किट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो 2.4 प्लस 2.1 करोगे तो भी 4.5 आएगा, 2.5 प्लस 2 करोगे तो भी 4.5 आएगा। आगे बढ़ते हैं। As the resistance between point P and Q changes, the current in the circuit changes. Use your resultant table 2.1 to write a conclusion stating how the change in current affects the potential difference across the LED and the resistance of the LED. अच्छा जी, बेटा एग्जामिनर हमें कह रहा है कि अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, हाउ इज योर करंट एंड रेजिस्टेंस चेंजिंग? तो आप क्या कहोगे? एज द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज हैपनिंग? The current is decreasing. What happens to the resistance of LED? The resistance of LED increases. तो इसको लिख लेते हैं साथ साथ. You can say, you just have to state. So you will say, as the current in the circuit changes. What is happening as the current in the circuit changes? देखो, करंट इन द सर्किट अगर डिक्रीज हो रहा है, आपके वोल्टेज क्यू आर को क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू योर वोल्टेज क्यू आर? देखो बेटा वापस समझ लो, वापस थोड़ा सा समझ लो। आई थिंक पहले मैंने एक दो चीज़ें मिसप्लेस कर दी यहाँ पे। द एग्जामिनर इज सेइंग एज द करंट इन द सर्किट इज चेंजिंग, व्हाट इज हैपनिंग टू वोल्टेज क्यू आर, व्हाट इज हैपनिंग टू रेजिस्टेंस ऑफ द एलईडी? क्या आप रियलाइज कर सकते हो जैसे ही करंट इन द सर्किट इज चेंजिंग, द वोल्टेज अक्रॉस क्यू आर decreases and the resistance across LED increases. So you can write this. You can say as the current in the circuit changes, the voltage across QR decreases and the resistance across LED increases. Simple as that. ठीक है? तो जैसे ही आपका करंट डिक्रीज कर रहा है, वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी क्या कर जाएगी भाई? इंक्रीज कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Another student uses a variable resistor. Draw a symbol for the variable resistor. Variable resistor का symbol कैसे बनाएंगे भाई? Somewhat like this. Explain one advantage of using a variable resistor for this purpose rather than the procedure carried out in A and B. Variable resistor लगाने का क्या फायदा होगा? You wouldn't have to connect and disconnect the circuit time and again. बेटा देखो ए और बी में आपने क्या किया? इफ यू कम हेयर, यहाँ पे आपने क्या किया? पहले आपने 220 ओम रेजिस्टर को निकाला, फिर 330 ओम वाले रेजिस्टर को लगाया। तो यू हैव टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट टाइम एंड अगेन इफ यू आर यूजिंग फिक्स्ड रेजिस्टर्स। वेरिएबल रेजिस्टर में ये मसला नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेन वन एडवांटेज, व्हाट विल यू से? वेरिएबल resistor avoids connecting and disconnecting the circuit to change the resistance. ठीक है? वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो अवॉइड करता है कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग द सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस। आप सिंपली एक बटन से रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। तो या लेट्स मूव ऑन।
अहेड क्या लिखा हुआ है? Our student investigates the image formed by a converging lens. The apparatus is set up as shown in figure 3.1. अच्छा जी apparatus setup हुआ हुआ है. The student switches on the lamp. He places the lens at a distance of u that is 20 centimeter from the illuminated object. अच्छा जी ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है between the object and the lens. This is known as u. Perfect. Adjust the position of the screen until a sharp focus image is formed on the screen. Perfect. Measure on figure 3.1 to the nearest 0.1 centimeter the image distance from the center of the lens to the screen. भाई आपने ये image distance measure करना है. You will measure it using a lovely little ruler. 1 मीटर रूल से आपने ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है. मैं ऑलरेडी एक सारे काम कर चुका हूँ ख्वारी वाले. तो व्हाट डज योर डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 12.1 सेंटीमीटर. ओके. फिगर 3.1 इज ड्रॉन टू 1/5 फुल साइज. अच्छा जी ये 1/5 है ऑफ द फुल साइज. ओके. कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस v फ्रॉम द लेंस एंड रिकॉर्ड योर वैल्यू इन टेबल 3.1. बेटा 1/5 है तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12.1 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 60.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे लिख दो 60.5 सेंटीमीटर. सो या लेट्स पुट इट हियर. परफेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. द डायग्राम इन फिगर 3.2 shows the illuminated object and its image drawn full size when u is 20 centimeter. अच्छा जी ऑब्जेक्ट और इमेज आपको गिवन है. State two ways. अच्छा जी we have to state two ways in which the image differs from the object. Obviously image is magnified. image बड़ी है object से and image is inverted. So you can write these two things here. Image is magnified and image is inverted. है ना फिजिक्स इजी. सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने का आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क मिल रहा है. ओके. यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन. हाउ विल यू डू दैट? v की वैल्यू क्या थी बेटा 60.5. u की वैल्यू क्या थी 20. 60.5 divided by 20 this comes out to be 3.025 as your magnification. Let's keep our answer till 3 significant figures. 3.03 is your answer. ठीक है. हम हमेशा अपने आंसर्स को 3 significant figures पे कोशिश करते हैं लिमिट कर दें so that they look neat and clean. The student repeats the procedure in A part 1 for values of u 25 centimeter, 35 centimeter, 45 centimeter, 55 centimeter and 60 centimeter. अच्छा जी आप u की वैल्यूज को चेंज कर रहे हो. The student plots are shown in figure 3.1. Plot a graph of v on the y-axis, u on the x-axis. Draw the best fit curve. अच्छा जी कर्व बनाना है. First of all तो लेबल कर दो. Y-axis पे you will be plotting v slash centimeter. X-axis पे you will be plotting u slash centimeter. Now let's plot all the points. पहला पॉइंट देखो भाई क्या है. u 20 है v 60.5 है. अच्छा जी u 20 है v है 60.5. तो 60.5 तो कहीं यहाँ पे होगा और 20 यहाँ पे है. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. ओके ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे आ जाओ बेटा. u की वैल्यू क्या है 25. v की वैल्यू क्या है 37.2. 25 एंड 37.2. तो ये आ जाएगा 37.2 और ये आ गया 25. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. ठीक हो गया. हाँ. अब आ जाओ u की वैल्यू है 35 एंड 26.5. 35 तो यहाँ पे होगा 26.5 समवेयर हेयर. है ना 26.5 विल बी हेयर और ये 35 है. तो ये आ गया आपका एक और डॉट. ठीक हो गया. व्हाट्स योर नेक्स्ट पॉइंट?
45 and 22.7, 45 and 22.7, ये आ गया 22.7, 45 यहाँ पे होगा कहीं. दिस कम्स आउट टू बी योर नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा जी, बाकी आ जाओ. बाकी कौन सा पॉइंट है? 55 20.9. 55 यहाँ पे होगा एंड 20.9 है ना, तो समवेयर हेयर. या उसके अलावा व्हाट डू यू हैव? 60 and 20.2. ये 60 आ गया और यहाँ पे यू विल हैव 20.2. ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी हैव? ये बड़े ही अजीब से पॉइंट्स इन्होंने दिए थे. 1 2 3 4 5 6. ओके, यू हैव 6 पॉइंट्स. ओके. Whenever you have 6 points, you have to draw the best fit curve. What is the best possible option? What is option number one? What is the best possible option? Hmm. Option one क्या होता है? Try and make sure कि all the points lie on the curve. कोशिश करो कि सारे के सारे points curve पे lie कर रहे हो. Let's see हमारी ये कोशिश नाकाम रहती है या कामयाब रहती है. ओ, दिस कुड बी पॉसिबल. दिस कुड एक्चुअली बी पॉसिबल. कोशिश करते हैं एक और दफ़ा. यस. सो here you can see we have satisfied the best possible scenario. 6 पॉइंट्स हैं और 6 के 6 पॉइंट्स ही कर्व पे लाई कर रहे हैं. सो या दिस इज ग्रेट. नाउ अगर 6 पॉइंट्स होते और ये ऑप्शन ट्रू नहीं होता, लेट्स से वी हैड 6 पॉइंट्स एंड ऑल द 6 पॉइंट्स weren't lying on the curve, फिर क्या करते? लाइन ऑफ बेस्ट फिट में हमेशा एक रूल याद रखा करो कि सेम नंबर ऑफ पॉइंट शुड बी अबव एंड बिलो द कर्व, या कर्व ऑफ बेस्ट फिट में, लाइन ऑफ बेस्ट फिट में, आइदर वे. सेकंड ऑप्शन हमारा ये हो सकता था दैट 4 पॉइंट्स ऑन द कर्व, 1 पॉइंट अबव, 1 पॉइंट बिलो, 1 पॉइंट अबव द कर्व, 1 पॉइंट बिलो द कर्व. ये आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता था बेटा. अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता था भाई? व्हाट कुड हैव बीन योर थर्ड ऑप्शन? ये सारी लिखने पड़ते हैं मुझे, ये बड़ी, ये सोचने वाला काम है. ये कोई वो नहीं है, मेथड नहीं है. दिस ऑप्शन नंबर 3 क्या हो सकता था? 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, 2 पॉइंट्स अबव, 2 पॉइंट बिलो. ठीक है, 2 पॉइंट्स अबव द कर्व, 2 पॉइंट्स बिलो द कर्व. तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता था. हमेशा याद रखो बेटा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कर्व ऑफ बेस्ट फिट जब भी बना रहे हो तो सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव बिलो अगर आपने रख लिए तो यू आर अ जीनियस. अब आगे बढ़ते हैं. यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वी व्हेन यू इज 30. शो क्लियरली ऑन द ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन द मेजरमेंट. अच्छा जी, यू की वैल्यू जब 30 है, दैट इज हेयर. जब यू की वैल्यू 30 है, v comes out to be 31. जब u की वैल्यू 30 है, v comes out to be 31. ओके, यूज दिस टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है भाई? 30. v की वैल्यू है 31. 30 प्लस 31. कैन यू कैलकुलेट द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं. 30 प्लस 31. Focal length, according to three significant figures, comes out to be 15.2 centimeter. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपकी फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 15.2 सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. स्टेट वन टेक्निक you use when doing this experiment to ensure that the image of the screen is as clearly focused as possible. क्या करोगे? Move the screen slowly. Move the screen slowly
फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ये बड़ा रेपिटेटिव सवाल है एग्जाम में। सिंपल। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, लेट्स जूम आउट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हॉट वाटर इज poured इनटू अ ग्लास बीकर, भाई हॉट वाटर पोर कर रहे हैं इनटू अ ग्लास बीकर एंड इट इज अलाउड टू कूल डाउन, ठीक हो गया। Plan an experiment to investigate how the rate at which water cools depends on the diameter of the water surface exposed to air। भाई किस रेट पे वाटर कूल कर रहा है, the rate at which water cools, how much of that depends on the diameter of the water surface exposed to air, ये हमने टेस्ट करना है। तो भाई किस रेट पे वाटर कूल हो रहा है, इसको हमने टेस्ट करना है with the diameter of the water surface exposed to air। You are provided with a supply of hot water, a set of glass beakers of different sizes, and a measuring cylinder. Okay. You may use any other common laboratory apparatus in your plan, include any other additional apparatus that you need. I can think of many apparatus that we need. First of all, हमने रेट मेजर करना है तो वी विल बी मेजरिंग द टाइम एज वेल। टाइम मेजर करने के लिए हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी। Secondly, can you realize we will have to measure the temperature as well? Initial और final temperature भी measure करना होगा। Temperature measure करने के लिए we will need a thermometer. Lastly, can you realize we will have to measure the diameter of the water surface exposed to air? तो हमें कोई measuring instrument भी चाहिए होगा। Let's say diameter measure करने के लिए the best possible thing is vernier calipers। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स तो हमें लाजमी चाहिए होंगे। लेट्स राइट देम डाउन। यू कैन से a stopwatch will be needed to measure time, a thermometer will be needed to measure the initial and final temperature, a thermometer would be needed to measure initial and final temperatures. What else? A vernier caliper will be needed to measure the diameter. A vernier caliper will be needed to measure the diameter. Simple. अब बढ़ते हैं आगे। A brief description of the method, including what you will measure, how will you make sure your measurements are accurate. अच्छा जी, you will have to take a brief description of what you will measure and how will you make sure that the measurements are accurate। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? Yes, what will we do? We will take a glass beaker, ठीक है, और उसमें हम hot water place कर देंगे। We will take a glass beaker and we will place hot water inside that glass beaker, है ना? Then what we will do? We will measure the initial temperature। फिर हम क्या करेंगे भाई? इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। देन हम हॉट वाटर को एक स्पेसिफिक टाइम दे देंगे। लेट से हमने हॉट वाटर को सराउंडिंग में 5 मिनट्स के लिए रखा एंड देन वी मेजर द फाइनल टेम्परेचर। यू विल हैव द फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, आप चेंज इन टेम्परेचर निकाल लोगे, इनिशियल माइनस फाइनल। रिपीट दिस प्रोसीजर with different glass beakers के diameters। Repeat this procedure with the different glass beaker के diameters। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, pour 100 cm cube of hot water into a glass beaker, record
the initial temperature. Give a variable as well. यहाँ पे variable भी दे दो initial temperature का. Record the initial temperature Ti of the water using a thermometer. Then what will you do? Allow the water to cool for a known time, let's say 5 minutes. Allow the water to cool for a known time, let's say 5 minutes. And then measure the final temperature. Simple. अब क्या करोगे? Calculate the change in temperature. अब आपने चेंज इन टेम्परेचर निकाल देना है और एग्जामिनर को बता देना है. हाउ विल यू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर? डेल्टा टी, इनिशियल टेम्परेचर टी आई minus the final temperature TF. Simple. Lastly, what will you say? Repeat the experiment for at least 5 different values of diameter. Okay. अब क्या करना है? द की वेरिएबल्स दैट यू विल कंट्रोल. बेटा आपने इनिशियल टेम्परेचर कंट्रोल करना है. यू हैव टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट यू पोर. ठीक है. यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन एज वेल. बेटा टाइम भी आपने हर बीकर को सेम देना है. हर बीकर को 5 मिनट ही देने हैं. हर बीकर में 100 cm³ ऑफ वाटर ही डालना है. हर बीकर का इनिशियल टेम्परेचर भी आपने सेम रखना है. तो यू कैन राइट the volume of water, the volume of hot water, the initial temperature of hot water, initial temperature of hot water, and the time taken for cooling should be kept constant throughout the experiment, should be kept constant throughout each experiment. Simple. अब बढ़ते हैं आगे. A table to record your results. टेबल बना लेते हैं. How will you draw a table? Easy peasy, lemon squeezy. I have already told you टेबल में हर चीज़ आएगी जो आपने मेजर की है and everything that you have calculated. First of all, diameter slash meters. Then you will have the initial temperature slash degree centigrade. Then you will have final temperature slash degree centigrade. Then you will have the last column, that is change in temperature slash degree centigrade. Lastly, how will you draw out a conclusion? Plot a graph of diameter against temperature change to see if the diameter affects the temperature change. Plot a graph of
diameter against temperature change to see if diameter affects temperature change or not. Simple. I think that will be it for today. If you have any questions, you can ask right away.